Hey church, welcome back. हे कलीसिया, आपका स्वागत है फिर से। So we're going to go into the word right away, तो आज हम वचन की ओर बढ़ते हैं and the word that I'm going to share is going to be a surgical word. और जो मैं वचन आज आपके सामने बांटूंगा वो एक सर्जिकल, आपको छेद देने वाला वचन होगा। And the intention of the word today is so that we can be compelled to hear the voice of God. और मैं ये इसलिए वचन बांट रहा हूँ ताकि आपके अंदर एक भूख हो जाए परमेश्वर की आवाज को सुनने की। हम विवश हो जाएं, so we can be compelled to hear the voice of God. Amen. और हम विवश हो जाएं उसकी आवाज को सुनने के लिए। Amen. So the heading of the sermon today is importance of hearing the voice of God. सो आज का जो वचन है उसका शीर्षक ये है कि कितना महत्व है परमेश्वर की आवाज को सुनना। And we'll start by reading the scripture, but let's just first come to our Father and pray. पहले हम इसकी शुरुआत एक आयत को पढ़कर करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए हम प्रार्थना करते हैं। Daddy, we come into your presence प्रभु, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं and we ask for help और हम प्रभु आपसे मदद मांगते हैं so that we can learn ताकि हम सीख सकें like students of the word, एक चेले की तरह। so that we can be corrected, प्रभु, ताकि जहां हम गलत हों प्रभु आप हमें वहां सही करें। so that we can grow, प्रभु, ताकि हम ग्रो कर सकें, हम बढ़ सकें प्रभु। so that we can be transformed प्रभु, ताकि हम ट्रांसफॉर्म कर सकें, हम बदल सकें प्रभु। into the image of your Son Jesus. प्रभु, आपके बेटे की छवि में प्रभु। Let your word rule over our lives. प्रभु, आपका वचन हमारे ऊपर प्रभु रूल करे प्रभु। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से। Amen. Amen. All right, so church, we'll read the verse from Matthew chapter 6, verse 24. I'm reading from NIV version. You can pick whatever version you like, whatever speaks to you the most. सो कलीसिया, आइए हम अपनी बाइबल को खोलें और हम निकालेंगे मत्ती 6:24। And the Bible says, no one can serve two masters. Either, yeah, go ahead. और बाइबल कहती है कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, Either you will hate the one and love the other, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, or you will be devoted to the one and despise the other. वह एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। You cannot serve both God and money. तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। So a bunch of things here. तो मैं आपको बहुत सी बातें बताना चाहता हूँ। The first thing is there's a warning सबसे पहली बात, यहाँ पर एक चेतावनी है that you will either hate one and love the other, कि आप या तो एक से हेट करेंगे एक को और दूसरे से प्रेम करेंगे, एक से बैर करेंगे, or you will be devoted to one and despise the other. या आप एक को तुच्छ जानेंगे और एक के ऊपर अपना जीवन समर्पित Now, करेंगे। those are very strong words. ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण वचन हैं। कठोर बातें, they are strong words, you know. So and the Bible says you cannot serve both God and money. और बाइबल यहाँ बताती है आप दोनों की एक समय पर एक साथ सेवा नहीं कर सकते, पैसा और परमेश्वर। So Bible is making that claim here to put God and money in the same place. तो बाइबल यहाँ पर पैसे और परमेश्वर को एक जगह पर रख रही है। So we have to be very careful about how we study. सो हमें बहुत ध्यान से इस आयत को समझना है। Now you will ask me, what does this verse have to do with hearing the voice of God? तो आप मुझसे ये सवाल पूछेंगे कि इस आयत का परमेश्वर की आवाज को सुनने से क्या मतलब है? Well, everything. मैं ये बताना चाहता हूँ सब कुछ। It has to do everything with hearing the voice of God. सब कुछ जो आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं। Because there are two dominant voices in our life. क्योंकि यहाँ पर बहुत दो ऐसी आवाजें हैं जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। वजन रखती हैं, शक्तिशाली हैं. They're dominant in our life. So the first voice is the voice of the Father. जो पहली आवाज है वो परमेश्वर की आवाज है। You know, the voice of our daddy God, our Father. हमारे पिता की, हमारे पापा की आवाज। The second voice is the voice of money. और जो दूसरी आवाज है वो पैसे की आवाज है। Now, both these voices are true. और ये दोनों ही आवाजें सच हैं। And we find them in our own lives. और हम देखते हैं इनको अपने जीवन में। And we see people hearing these voices in their life.
और हम देखते हैं कैसे लोग इन दोनों की आवाज़ों को सुनते हैं. So I'll start by first talking about the voice of money so that you clearly understand why am I saying it is important to hear the voice of God. सो पहले मैं बात करूंगा कि कैसे हम पैसे की आवाज़ को सुनते हैं, ताकि आप इस बात को जान लें कि कितना ज़रूरी है हमें परमेश्वर की आवाज़ को सुनना. And since I'm doing a comparison, I'm drawing a comparison here. और क्योंकि यहाँ पर मैं तुलना कर रहा हूँ, So I'm going to give you 4 points about the voice of money. तो मैं आपको 4 पॉइंट्स बताऊंगा पैसे की आवाज़ को लेकर. And I'm going to give you 5 points about the voice of God. और मैं आपको 5 बातें बताऊंगा परमेश्वर की आवाज़ को लेकर. So as a student, तो एक चेले की तरह write down these things. प्लीज़ आप जो भी सीख रहे हैं उसको लिख लीजिए, Think about these things इसके बारे में मनन कीजिए and let the Spirit of God speak to you. और परमेश्वर की आवाज़ होने दे आपसे बात करे. Okay, so what happens when money God has a voice in your life? तो क्या होता है जब जो पैसा परमेश्वर है लोगों का, वो उसकी आवाज़ को जब आप सुनते हैं. जब पैसा आपके जीवन में ईश्वर होता है, when money acts like God in your life, what does it sound like? What does it look like? Okay? सो जब पैसा ईश्वर होता है आपके जीवन में, वो कैसा दिखता है और कैसा सुनता है, आप उसको कैसे सुनते हैं. So the first thing is money gives commandments. सो पहली बात मैं बताना चाहता हूँ कि जो पैसे की आवाज़ है वो आज्ञा देती है. Just like God, money also gives certain commandments. जैसे परमेश्वर हमें आज्ञा देता है, ऐसे ही पैसे की आवाज़ भी हमें आज्ञा देती है. It says, "Do not let me go. वो कहती है मुझे मत जाने दो. Preserve me as much as you can. जितना मुझे जोड़ सकते हो उतना मुझे जोड़ लो. For as long as you can. जितना लंबे समय के लिए उतना मुझे अपने पास रख लो. Work hard so you can gain me. मेहनत करो ताकि तुम मुझे और पाओ. Sacrifice, compromise so you can get me. बलिदान कर लो, समझौता कर लो ताकि मैं तुम्हें मिल जाऊं. Lie, cheat, steal and betray so you can have more of me. झूठ बोलो, धोखा दो ताकि मैं तुम्हें और मिल जाऊं, तुम मुझे और पा सको. And all these commandments keep on getting worse and worse, like it happened to the prodigal son in Luke 15. और ये सारी बातें, सारी आज्ञाएं और भी खतरनाक और भी बुरी हो जाती हैं, जैसे उस उड़ाऊ पुत्र के साथ हुआ. You know, the voice of money came in the life of the prodigal son. जो पैसे की आवाज़ थी वो उड़ाऊ पुत्र के जीवन में भी ऐसे आई. So money says, go demand your portion. सो पैसे की आवाज़ ने कहा, जा और अपना हिस्सा मांग ले. Consider your father dead. अपने पिता को जान ले कि वो मर चुके हैं. Leave your father's house. अपने पिता को छोड़ दे, उसके घर को छोड़ दे. See, God spoke to Abraham and said, leave your father's house. देखिए, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अपने पिता के घर को छोड़ दे. And just like God, money imitates God and says to this young one, leave your father's house. और जैसे परमेश्वर पिता ने अब्राहम को कहा, ऐसे ही पैसे की आवाज़ ने उड़ाऊ पुत्र को कहा कि अपने पिता को छोड़ दे. Go to a strange land of opportunity where I will take you. एक ऐसे अनदेखे जगह पर जहाँ मैं तुझे लेकर जाऊंगा. So you see how money gives commandments like God. तो आप देख सकते हैं कैसे एक पैसे की आवाज़ भी हमें आज्ञा देती है. The second thing I want to talk about money. और जो दूसरी बात है पैसे की, वो मैं बताना चाहता हूँ. The servant is always listening. जो एक दास है वो हमेशा सुन रहा है. Let's look at a verse from 1 Samuel 3 chapter 10, verse 10, sorry. आइए हम शमूएल की पुस्तक में जाते हैं. शमूएल 3, पहला शमूएल 3 उसकी 10वीं आयत. And I'm reading from the NLT version. और मैं NLT वर्जन से पढ़ रहा हूँ. And it says, and the Lord came and called as before. तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले की नाई पुकारा. Samuel, Samuel, and Samuel replied, speak, for your servant is listening. शमूएल, शमूएल, शमूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है. You know, sons and daughters of God, they act like servants of money and they say, speak, for your servant is listening. परमेश्वर के बेटे और बेटी एक दास की तरह
पैसे की आवाज को सुनते हैं और कहते हैं हमसे बात कर, For your servant hears. क्योंकि तेरा चेला सुन रहा है, तेरा चेला उस पैसे की तेरा आवाज को दास, सुन रहा है, your servant, your slave is listening. तेरा दास उस पैसे की आवाज को सुन Like I रहा was saying, है. it's going to be surgical. It's not going to be either it's going to transform you or it's going to offend you. और जैसे कि मैं पहले बता रहा था कि जो बातें मैं बता रहा हूँ वो कठोर हो सकती हैं, या तो वो आपको पूरी तरह से बदल देंगी या आपको ऑफेंड कर देंगी. So, I'll give you examples so you can relate, you can understand. A believer goes out and applies for jobs in different companies. तो मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें. एक विश्वासी किसी जॉब के लिए जाता है 3 अलग अलग कंपनियों में. And the first company offers them 20,000, the second company offers 22,000, the third company offers 25,000. और पहली कंपनी है वो उसको 20,000 की जॉब देती है, दूसरी कंपनी उसको 22,000 की जॉब देती है और तीसरी कंपनी उसको 25,000 की जॉब देती है. So guess what will be the voice of God that they will hear, what job they should take. तो आप सोचिए कि वो किस आवाज को सुनेगा उस जॉब के लिए. What will be the voice of God? They'll say, "Oh, God told me to take this job." और वो कहेंगे कि परमेश्वर ने मुझे इस जॉब को लेने के लिए बोला है. What will be that job? वो कौन सी जॉब होगी? It's without a doubt it'll be the highest paying offer. और किसी भी डाउट वो ही जॉब होगी जो सबसे ज्यादा आपको पैसा दे रही है. Yeah. Yashvika, my wife, is translating with me today, and I commend what you're doing. You're doing really good. Thank you. So, it'll be the voice that tells them to go for the highest paying job. और वो आवाज होगी जो उनको बोलेगी तू उस जॉब में जा जो तुझे सबसे ज्यादा पे कर रही है. Now, they will not care if they will have lesser amount of time for themselves and their family because of that और job. उनको फर्क नहीं पड़ेगा कि उस जॉब को करने से वो अपने परिवार से और अपनी चीजों को कम समय दे पाएंगे. They will not care if they have to throw out their hobbies and their dreams out of the window so that they can get that job. उनको फर्क नहीं पड़ेगा कि उनको जो करना अच्छा लगता है, जो उनकी चाह है, जो उनकी हॉबीज हैं, जो उनकी ड्रीम्स हैं, वो उनको निकाल फेंकेंगे. लेकिन they would even be willing to sacrifice relationships to an extent for that job. और वो उस जॉब के लिए अपनी जो रिश्ते हैं उसको भी दाव लगाने को तैयार हो जाएंगे. Like, not in a condemning way. मैं दोष लगाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, but we know people who would leave their family and go to a different country so that they can earn for their family. और हमने देखा है कैसे लोग उस जॉब के लिए अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को, रिश्तों को छोड़कर एक बिल्कुल अलग सी जगह में जाकर उस जॉब को करने लगते हैं. They will say they are doing this for their family. वो कहते हैं कि हम अपने परिवार के लिए इस जॉब को कर रहे हैं. But then years pass by and they have no time for their family. लेकिन साल हो जाते हैं और उनके पास अपने परिवार को टाइम देने के लिए भी समय नहीं And होता. all of this for a couple of thousand rupees extra every month. और ये केवल छोटे से उस पैसे के लिए जो एक्स्ट्रा 1,000 रुपीज जो उनको मिल रहा है. कुछ चंद हजारों के लिए we sacrifice everything. Yeah, and I hope it's making sense. I'll go to the next point. और मैं आशा करता हूँ आप सब समझ रहे होंगे मैं क्या बताना चाहता हूँ. अब मैं तीसरी बात पर जाता हूँ. When we are hearing the voice of money, it becomes the reason for our delight. जब हम पैसे की आवाज को सुनते हैं तो हम बहुत खुश हो जाते हैं. Let's read a verse from Psalms chapter 40 verse 8. Sorry, Psalms 40 verse 8. आइए हम इस बात को बाइबल से देखते हैं. भजन संहिता 40 उसका 8. I am reading from NLT version, New Living Translation. और मैं NLT वर्जन से पढ़ रहा हूँ. And it says, I take joy in doing your will. हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ. It says, I take joy in doing your will, my God, for your instructions are written on my heart. और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बनी है. Amen. And the problem is not that this verse is given for God. The problem is when money takes this place. और
प्रॉब्लम ये नहीं है, परेशानी ये नहीं है कि ये वचन परमेश्वर के लिए बात कर रहा है, लेकिन परेशानी तब है Yeah. जब इस वचन में परमेश्वर की बजाय पैसा आ जाता है. Come on, think about that. I take joy in doing your will. इस बारे में सोचिए, मुझे आनंद मिलता है तेरी इच्छा को करने से. Have you heard these testimonies from believers saying, oh, I got a very good discount, praise God? और क्या आपने ऐसी गवाहियाँ सुनी हैं बिलीवर्स से, विश्वासियों से, कि वो कहते हैं कि अरे वाह, ये मुझे डिस्काउंट मिला है, परमेश्वर की आराधना हो. This was so expensive and I got a great deal. I got a steal deal, praise God. और ये बहुत ही ज़्यादा महंगा था और परमेश्वर की आराधना हो कि मुझे बहुत ही बढ़िया डील मिली Oh, है. I got a better paying job, praise God. ओ परमेश्वर की आराधना हो, मुझे बहुत ही ज़्यादा पैसे देने वाली जॉब मिली है. See, all these things are good, देखिए, ये सारी बातें अच्छी हैं, but I'm not talking about that. I'm talking about is money a delight? लेकिन देखिए, मैं इन सब बातों की बात नहीं कर रहा. मैं ये बात कर रहा हूँ कि क्या पैसा हमारा डिलाइट है. We so easily praise God when we save money on things. हम बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं और परमेश्वर की आराधना करते हैं जब हम पैसे को बचाने लग जाते हैं. We count an experience good or bad depending on how much money we got in profit or in loss. और जब हम प्रॉफिट में होते हैं तो हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, लेकिन जब हम लॉस में चले जाते हैं तो हम बहुत दुख हो जाते Like हैं. we count experiences according to our profits and loss. और हमारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, हम वो प्रॉफिट और लॉस से बन जाते हैं. Come on, would you praise God when you've lost money? क्या आप परमेश्वर की आराधना करते हैं जब आप पैसे को खो देते हैं, Or when you got something overpriced? या आपको कुछ ऐसी चीज मिलती है जिसकी कीमत महंगी होती है. Like your friend got it for 1,000, you paid 2,000 for the same thing. उदाहरण के लिए आपके दोस्त को जो चीज़ 1000 में मिली वो आपको 2000 में मिली. Because our joy is still connected to money. क्योंकि हमारा आनंद आज भी पैसे से जुड़ा हुआ है. And ultimately that voice can be very expensive. और ये जान लीजिए, ये पैसे की आवाज़ हमारे जीवन को नाश कर सकती है. It can be very costly for us. वो हमारे लिए बहुत कॉस्टली पड़ सकती है, Especially as children of God. स्पेशली जब हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं. Okay, the fourth point. और मैं चौथी बात बताना चाहता हूँ. It makes people betray God ordained relationships in their life. और पैसे की आवाज़ लोगों को अपने रिश्ते में धोखा लाती है. वो Those relationships people betray which God brought into their life. जो रिश्ते परमेश्वर ने लोगों के जीवन में रखे हैं, पैसे की आवाज़ की वजह से वो धोखा देने लग जाते हैं उन रिश्तों को लेकर. Did you know Judas was as much a disciple as Peter was? क्या आप जानते हैं, जो यहूदा था वो उतना ही चेला था जितना पतरस था. He would have been as much an apostle as the remaining 11 were. वो उतना ही प्रेरित होता जितने बाकी के प्रेरित होते. But money made him betray the calling. लेकिन पैसे ने उसने धोखा दिया उस पैसे की आवाज़ को सुनकर. And those relationships that God placed in his life. उसने धोखा दिया उस रिश्तों को जो परमेश्वर ने उसके जीवन में रखे थे. So, dear children of God. सो मेरे प्रिय बेटे और बेटी, परमेश्वर की संतान, I would plead you मैं आपसे विनती करता हूँ to go to your father and speak to him about these things. आप अपने पिता के पास जाएं और इन सब बातों को लेकर जाएं और उससे बात करें. That does money have a voice in these areas of your life? क्या आपके जीवन में पैसे की आवाज़ बोलती है? Does money rule these areas of your life? क्या पैसा आपके जीवन में रूल करता है? Now, I'm going to go to the importance of hearing the voice of God now. और अब मैं बात करूंगा क्यों इम्पोर्टेंट है परमेश्वर की आवाज़ को सुनना. Because your walk could look like you're a billionaire. हो सकता है आपकी परमेश्वर के साथ की जो चाल है वो ऐसी लगे कि आप बहुत अमीर हैं, बिलियनियर हैं. Or it may not look like that. और हो सकता है वो ऐसी ना दिखे. But what will definitely happen when you know the importance of hearing God's voice?
लेकिन मैं बताना चाहता हूँ क्या होगा जब आप इस बात का महत्व जानेंगे कि परमेश्वर की आवाज़ आपके जीवन में कितनी महत्व रखती है। The first thing is you will learn to depend on God. सबसे पहली बात जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि आप परमेश्वर पर निर्भर होना सीखेंगे। Whether you are flauntingly rich or not. फर्क नहीं पड़ता आप अमीर हैं या नहीं हैं, लेकिन आप परमेश्वर पर निर्भर होना सीखेंगे। When David was a king sitting in his palace with his treasury filled with gold and silver and all the treasures. जब दाऊद एक राजा था, उसके पास खजाना था, गोल्ड था, सोना था। You know, he says, "The Lord is my shepherd; I shall not be in want." और तब वो इस बात को कहता है कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे किसी भी बात की कमी और घटी नहीं होगी। Not looking at what he has, but looking at the Lord. और वो उसके पास कितना पैसा है उस बात को नहीं देख रहा था, लेकिन उसकी आंखें परमेश्वर पर गड़ी हुई थी। You know, because all those years in the wilderness, क्योंकि इतने साल उस विल्डरनेस में, you know, जब वो जंगलों में भटक रहा था, when he was in the wilderness, he habitually heard the voice of God. और आप देखेंगे कैसे दाऊद जब इतने साल जंगलों में भटक रहा था तो वो परमेश्वर की आवाज को सुना करता था। Because he said, "I have always kept the Lord before me." क्योंकि वो कहता था कि मैंने हमेशा परमेश्वर को अपने आगे रखा है। And this is my prayer as the body of Christ, और ये मेरी प्रार्थना है that we would keep that importance of God's voice. We would always keep it before us. और ये मेरी प्रार्थना है कि हम परमेश्वर की आवाज़ को हमेशा अपने सामने रखेंगे, अपने आगे रखेंगे। Because it teaches us to depend on Him. क्योंकि वो हमें सिखाती है कि हम परमेश्वर पर कैसे निर्भर कर सकते हैं, अपने जीवन को कैसे निर्भर कर Yeah. सकते So the हैं। first point was you learn to depend on Him. पहली आवाज़, हम कैसे परमेश्वर पर निर्भर हो सकते हैं। Now, what happens when you are dependent on God? तो क्या होता है जब हमारा जीवन उसके ऊपर निर्भर है। That's the second point. और ये दूसरा पॉइंट है, Supernatural provision is available to you. अलौकिक प्रोविजन हमारे लिए अवेलेबल होता है। Amen. So remember the time when Jesus and Peter did not have any money to pay their taxes? आपको याद है जब यीशु मसीह और पतरस के पास पैसे नहीं थे टैक्स पे करने के लिए? Apparently because Judas took out all the money. क्योंकि We don't know. यहूदा ने सारा, हो सकता है उसने सारा पैसा रख लिया हो। So Jesus was not worried about paying taxes. देखिए यीशु मसीह चिंतित नहीं था कि मैं कैसे टैक्स को पे करूंगा। He tells Peter, go to the sea and whatever, you know, जहाँ पे river होगा. He says, go and catch a fish, and in the fish's mouth you will find a coin, and go pay your and my tax. और वो उस समय पतरस को कहता है तू जा और अपना जाल डाल और जो तू मछली पकड़ेगा उसमें पैसे होंगे और तू उस पैसे से टैक्स भर दे। Now imagine Peter is going all this way because he has been a fisherman from his very young age. तो सोचिए पतरस चल रहा होगा और वो शुरुआत से ही बचपन से मछुआरा था। He's like, ऐसे थोड़ी होता है। और हो सकता है वो सोच रहा हो कि ऐसे थोड़ी ना होता है कि एक मछली के अंदर से आपको एक सिक्का मिले। You know, I've been catching fish ever since I was a boy. I've never caught a single coin in my life. और मैं कब से मछलियां पकड़ रहा हूँ और मैंने आज तक मछली के मुंह में कोई सिक्का नहीं देखा। But when you will hear the voice of God, लेकिन जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, in the strongest area of your life, आपके जीवन में सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया होता है, you will see God working even in that area. आप देखेंगे परमेश्वर उस एरिया में भी आपके जीवन में काम करेगा। Amen. So when supernatural provisions opens up for you, जब वो अलौकिक प्रोविजन, अलौकिक चीजें आपके जीवन में खुलेंगी, what happens as a result of that? तो क्या होता है? You begin to trust God, आप परमेश्वर पर भरोसा करने लग जाते हैं। right? And as a part of your trust, money becomes your servant. और जब आप उस पर भरोसा करते हैं Amen. तो पैसा आपका दास बन जाता है। Because you're no longer chasing after money. क्योंकि अब आप पैसे के पीछे नहीं भाग रहे, You're constantly learning to hear the voice of God. क्योंकि अब आप परमेश्वर की आवाज को सुनना सीख रहे You're हैं। constantly learning to trust Him. आप सीख रहे हैं कि परमेश्वर पर आप कैसे भरोसा करें। And money serves God. और जो पैसा है वो परमेश्वर को सर्व करता है। Okay, let's look at Matthew 6:33. आइए अब हम मत्ती 6:33 देखते हैं। And I'm reading from NIV. It says,
but seek first the kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. इसलिए पहले तुम उस राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी. You know, money is a great tool, a great servant. जो पैसा है वो बहुत ही अद्भुत दास है, बहुत ही अद्भुत औजार है, But it's a very wicked master. पर बहुत ही दुष्ट मास्टर है, बहुत ही दुष्ट मालिक है. Bible says the love of money is the root cause of all evil. बाइबल कहती है कि पैसे का प्रेम ही हर बात का ईविल है. Money itself is not evil. पैसा दुष्ट नहीं है. Like when you have money when somebody has money in their hand, अगर किसी मनुष्य के हाथ में पैसा हो, they can buy medicines, वो उस पैसे से या तो दवाइयाँ खरीद सकते हैं, or they can buy intoxicating material. They can buy drugs, alcohol, whatever. और वो हो सकता है वो उसी पैसे से ड्रग्स खरीद सकते हैं या दारू खरीद सकते हैं. So money is not wicked. सो समझिए, जो पैसा है वो बुरा नहीं है, Money as a master is wicked. लेकिन जो पैसा है एक मालिक की तरह वो बुरा है. Because then it has a hold on your life. You have love for it and it controls you. क्योंकि जब वो आपका मालिक होता है तो वो आप पर राज्य करता है. So when money becomes your master, when money becomes your servant, I'm sorry, जब पैसा आपका दास बन जाता है, it gives you time to think about God. जब पैसा आपका दास बन जाता है तब आप पैसे के बारे में नहीं लेकिन आप प्रभु के बारे में सोचते Because हैं. otherwise we're always consumed. How will we pay that bill? How will we pay the rent? How will we do this? How will we do that? क्योंकि अगर पैसा आपका दास नहीं है तो आप हमेशा उन बातों से घिरे रहते हैं कि मैं अपना बिल कैसे चुकाऊंगा, मैं कल क्या पहनूंगा, मैं इस जॉब में जाऊं या ना जाऊं. Yeah, we're always concerned about things. हम हमेशा ऐसी बातों से घिरे रहते हैं. But when money is not leading us, लेकिन जब हम पैसा हमारी अगुवाई नहीं कर रहा है, we have an opportunity to become Christ-like. हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी होती है कि हम परमेश्वर के जैसे बन जाएं. We can think on the word. हम उसके वचन पर मनन कर We सकते can हैं. meditate on his word. हम उसके वचन पर मनन कर सकते We हैं can, without worrying, live life. और बिना चिंता किए हुए हम इस जीवन को जी सकते हैं. And a life where there is no worry और ऐसे जीवन में जहाँ चिंता नहीं है, is a life that Satan cannot manipulate. वो ऐसा जीवन है जहाँ शैतान हम पर राज्य नहीं कर सकता. Yeah, he cannot deceive us. वो हमें डिसीव नहीं कर सकता. Yeah. And when we become Christ-like, और जब हम परमेश्वर के जैसे बन जाते हैं, you know what happens? आपको पता है क्या होता है? Did you know Judas was equally loved as much as John was loved? आपको पता है प्रभु ने जूदस को भी उतना ही प्रेम किया जितना उसने पतरस को प्रेम You किया. know, Jesus loved Judas and John equally. यीशु मसीह ने यहूदा को और यूहन्ना को एक जैसा ही प्रेम किया. And that's what happens to you when you become Christ-like. और ये होता है जब आप बन जाते हैं परमेश्वर के जैसे. You're able to love your fellow believers, आप अपने भाइयों को प्रेम कर सकते हैं, even those who have cheated you with money. उन लोगों को भी जिन्होंने आपके साथ पैसे को लेकर धोखाधड़ी करी हो. It's not correct and I don't encourage it. ये सही नहीं है, धोखा देना सही नहीं है, ना ही मैं इसको इनकरेज करता हूँ. And I would not encourage you to give money to people who have already betrayed you. और मैं आपको वो भी इनकरेज नहीं करूँगा कि आप उन लोगों को पैसा दें जिन्होंने धोखा किया हो आपके साथ. But I'm saying the sting of bitterness will not be in your heart. पर मैं आपको बताता हूँ आपके दिल में बिल्कुल भी बिटरनेस उन लोगों को लेकर नहीं होगी. Yeah, so you become Christ-like. तो आप परमेश्वर के जैसे बन जाएंगे. When you become Christ-like. जब आप परमेश्वर के जैसे बन जाएंगे. Now, everything that I've spoken about till now, अभी तक मैंने जो भी बातें आपसे कही हैं, this is what it leads to. उन सब बातों का सार ये है. The fifth point. 5वीं बात, We grow in our authority in the kingdom. हम अपने अधिकार में बढ़ते हैं परमेश्वर के राज्य में. Let's read a scripture. John 12:49. आइए हम एक आयत को खोलते हैं, यूहन्ना 12 का 39. 49. 49.
And I'm going to read that from NLT. और मैं NLT से पढ़ दूंगा. It says, I don't speak on my own authority. क्योंकि मैंने अपनी ओर से बात नहीं की. Jesus clearly mentions it, saying, I don't speak of my own authority. और यीशु मसीह बहुत ही सीधी बात में ये बात कह रहे हैं कि मैं अपने अधिकार से बात नहीं करता. The Father who has sent me has commanded me what to say and how to say it. परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या कहूँ और क्या बोलूँ. You know, have you ever seen, like if you've been to shopping with your mummy, you would know what I'm saying. और आपने कभी देखा है जब आप शॉपिंग पर जाएं अपने परिवार वालों के साथ, अपनी मम्मी के साथ. Especially moms love to negotiate the prices. स्पेशली जो मम्मियाँ होती हैं उनको अच्छा लगता है जो पैसे होते हैं उनको नेगोशिएट करना. So the first time they are going into a shop with you. और वो पहली बार आपके साथ उस दुकान पर जा रही हैं. And they will say, और वो कहेंगी, भाई साहब हम तो आप ही से सामान लेते हैं. भाई साहब हम तो आप ही से, I take from you only. You know, so money tells them what to say so that they can save some of it. और मनी उनको जो पैसा होता है वो बताता है कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है ताकि वो उसको बचा सकें. They say exactly what money tells them so that they can have what money is saying they can have. और वो वही बोलती हैं जो पैसा उन्हें बुलवाना चाहता है ताकि वो उस पैसे को और सेव कर लें. I hope I'm speaking to your culture as well. आशा करता हूँ कि मैं आपकी रीति रिवाज से भी बात कर रहा हूँ. So Jesus here is saying, the Father who has sent me. और यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं पिता जिन्होंने मुझे भेजा है has commanded me what to say and how to say it. उस पिता ने मुझे आज्ञा दी है कि मैं क्या बोलूं, कैसे बोलूं. And when we speak और जब हम बोलते हैं in the authority that God has, उस अधिकार में जो परमेश्वर के पास है, we start to operate in the highest authority possible. तब हम उस अधिकार में जो परमेश्वर का है उसमें हम चलने लग जाते It is the हैं. greatest authority possible. और वो सबसे बड़ा अधिकार है जो परमेश्वर ने हमें दिया है. And that is what this walk of hearing the voice of God is supposed to lead you to. और ये तब होता है जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनने लग जाते हैं और चलने लग जाते हैं. You know, there is, and of course it's with journeying, but there is a place in Christ where your words can reach an authority level where they cannot fall down without being fulfilled. और एक समय ऐसा आता है कि हम उस अधिकार में इतना बढ़ जाते हैं कि हम कोई भी बात जब बोलते हैं उस अधिकार से वो पूरी होती है. You know, nobody killed Ananias and Sapphira. किसी ने भी अननायास और सफारा को नहीं मारा था. Peter says, you know, the men who carried your husband will also carry you out. पतरस ने बोला जिन लोगों ने तेरे पति को लेकर गए हैं वो तुझे भी लेकर चले जाएंगे. The moment Peter said it, she fell. जैसे ही पतरस ने बोला वो गिर गई. His words had the authority. पतरस के वचनों में अथॉरिटी थी, सामर्थ था. I don't know if you heard of a man of God called Benson Idahosa. मैं नहीं जानता आप इन परमेश्वर के जन को जानते हैं जिनका नाम है बेंसन इडाहोसा. He's a general of our times in this last 50-60 years. You know, he had this era of glory. वो इस समय के जनरल हैं. general रहे हैं. वो इस समय के जनरल रहे हैं. And so the things that he would decree out in the public would happen in front of the whole nation. और जो भी बातों को वो बोलते थे वो बातें पूरी हो जाती थी. You know, Elijah the prophet said, "It will not rain because I am saying," and it did not rain for 3 years. अलाइजा ने बोला कि बारिश नहीं होगी और 3 साल तक बारिश नहीं हुई. And then he says, "Go Ahab, before your chariot reaches, the rain will reach." और फिर उसने बोला कि जा उससे पहले कि तेरा चैरियट पहुंचे बारिश हो जाएगी. And it rained. और बारिश हो गई. Elisha said to the kids, "Bears will come and eat you up alive." अलाइशा ने उन बच्चों को बोला कि भालू आएंगे और तुझे मार देंगे. And so it happened. और वो ही हुआ. Church, I'm saying this कलीसिया मैं ये कह रहा हूँ because the body of Christ needs to mature. क्योंकि जो परमेश्वर की देह है जरूरी है कि वो बढ़े मेच्योरिटी में. We are looking for a better job, a better house, a better a good life partner, things like that. और हम देख रहे हैं कि हमें एक अच्छी जॉब मिल जाए, एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए. And God will give you
much more than what you can ask, think, or imagine. और परमेश्वर आपको कहीं ज्यादा देगा जितना आप सोच भी नहीं सकते। But the call is much beyond that. पर जो परमेश्वर की बुलाहट है वो इन सब बातों से ऊपर है। In the simple things of life, छोटी छोटी बातों में, in the everyday things of life, छोटी छोटी रोजमर्रा की बातों में God is willing to journey with you. परमेश्वर आपके साथ चलना चाहता He है। wants to be a dominant voice in your life. वो चाहता है कि आप उसकी आवाज आपके जीवन में राज्य करे। He wants to be the voice that you can always turn towards. वो चाहता है उसकी आवाज हो जिसके पीछे आप चलें। He wants to be the voice that is always ahead of you. वो चाहता है कि उसकी आवाज हमेशा आपके आगे आगे चले। Like David says, I have always set the Lord before me. जैसे दाऊद कहता है कि मैंने परमेश्वर को हमेशा अपने आगे रखा है, अपने सामने रखा है। And when you have come to the Lord Jesus Christ, और जब आप परमेश्वर के पास आ गए हैं, I want to inform you this. मैं आपको बताना चाहता हूँ, You have been called with a hope, आप इस आशा के तहत बुलाए गए हैं। a hope of glory. इस आशा जो ग्लोरियस है, And that hope is to be transformed into the image of the Son of God. और ये आशा है जो आपको बदल दे उसकी इमेज में, उसकी छवि में। And hearing the voice of God और परमेश्वर की आवाज को सुनना is the most powerful thing you can do to yourself. और परमेश्वर की आवाज को सुनना आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। So I pray that whatever I've spoken to you about today, और मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं जो भी बातें आज मैंने आपको सिखाई हैं, that all of us as a family, as a household of God, और हम सब एक परिवार की तरह, that we can all grow in this. हम सब परिवार की तरह एक साथ इस बात में, इस प्रकाशन में आगे बढ़ So that सकें। we can all mature in this. हम सब इस प्रकाशन में परिपक्व हो सकें। Not that I have attained it, और मैं ये नहीं कह रहा कि मैं परिपक्व हो गया या मैं परफेक्ट हो गया, but I'm saying that I press on पर मैं ये कह रहा हूँ मैं सीखता रहता हूँ। wherever you are. आप जहाँ कहीं पर भी हैं, Press on. प्रेस ऑन। आगे बढ़ो. And God is willing to work with you. आप जहाँ कहीं भी हैं आगे बढ़िए और परमेश्वर आपके साथ आपकी मदद करना चाहता है। Amen. If the word blesses you, type amen. If it speaks to you, say something that it tells that the word of God has entered your heart today. और अगर आपको ये वचन ब्लेस करता है, आशीषित करता है, तो प्लीज़ कमेंट्स में आमेन टाइप कीजिए या ये टाइप कीजिए आपको ब्लेस किया है। Yeah. And we'll just go into prayer shortly, but I just want to say there's one last thing and I will close. हम थोड़े समय में प्रार्थना में जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक अंतिम बात कहना चाहता हूँ। It's a pleasure and an honor for us ये एक आनंद की बात है और ये आदर की बात है हमारे लिए that we can hear the voice of our Father. कि हम अपने पिता की आवाज़ को सुन सकते हैं। Out of the 7 billion people on the planet, इतने सारे लोग हैं जो उसकी आवाज़ को नहीं सुन सकते, there are so many that don't recognize His voice as a Father. और इतने सारे लोग हैं जो उसकी आवाज़ को रिकग्नाइज नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते। We have been given the privilege to hear and to know Him deeply and intimately through our union with Him. और परमेश्वर ने हमें ये आदर दिया है कि हम उसको और जान सकें और उसकी आवाज़ को सुन सकें और जान सकें कि ये हमारे पिता की आवाज़ है। That we can enjoy this deep and intimate union that we have been given with Him. और हम ये जो यूनियन है हमारा पिता के साथ, ये जो रिश्ता है हमारा पिता के साथ, हम इसको और इंजॉय कर सकें और गहराई से हम उसमें आगे बढ़ सकें। And you will learn to love and enjoy this powerful union as you learn, as you grow in hearing His voice. और मैं चाहता हूँ कि आप जैसे उसकी आवाज़ को सुने, जैसे उसकी आवाज़ को समझें, आप इस रिश्ते में जो उसके साथ आपका है उसमें भी आगे बढ़ते चले जाएं। So just to give you a wrap up, तो आपको एक छोटी सी अगर मैं समरी दूँ तो why is it important to hear the voice of God? क्यों ज़रूरी है परमेश्वर की आवाज़ को सुनना? Because there are two dominant voices in the world. क्योंकि दो बातें हैं, दो आवाज़ें हैं जो डोमिनेट करती हैं संसार को।
Either we'll hear the voice of God or we'll hear the voice of money. या तो हम पैसे की आवाज को सुनेंगे या हम परमेश्वर की आवाज को When we सुनेंगे। hear the voice of money, जब हम पैसे की आवाज को सुनते हैं money gives us commandments. तो पैसा हमें आज्ञा देता है, It makes us a servant. वो हमें अपना दास बना देता है, It becomes the reason for our delight, our joy. और पैसा फिर हमारे लिए आनंद का कारण बन जाता है। It makes us betray those godly relationships that God has put in our life. पैसे की आवाज हमें रिश्तों को भी धोखा देने पर विवश कर देती है। And what is the importance of hearing the voice of God? और परमेश्वर की आवाज को सुनना क्यों जरूरी है? Because you learn to depend on Him. क्योंकि आप सीखते हैं कि आप कैसे उस पर निर्भर हो जाएं। Because His supernatural provision becomes available for you. क्योंकि जो बातें उसने आपके लिए रखी हैं वो अलौकिक तरीके से आपके जीवन में पूरी हो जाती हैं। And when that happens, money no longer remains your master, it becomes your servant. और जब वो सारी बातें आपके जीवन में हो जाती हैं तो परमेश्वर आपका मास्टर रहता है और पैसा आपका मास्टर नहीं रहता। Yeah. And when this happens, you can think on the word, you can love people like Christ, even those who betray you. और जब ऐसा होता है तो आप लोगों को प्यार कर सकते हैं, उन लोगों को भी जिन्होंने आपके साथ धोखा किया हो। And by this you become more Christ-like. और ऐसा करने से आप और परमेश्वर के जैसे हो जाते हैं। And when we do this और जब हम ऐसा करते हैं and keep on hearing the voice of God, और उसकी आवाज को निरंतर सुनते रहते we हैं, grow in our authority in the kingdom. हम अपने अधिकार में बढ़ते चले जाते हैं जो उसके राज्य में है, So that all of us ताकि हम सब can be fully matured पूरी तरह से परिपक्व हो जाएं into that man Jesus, परमेश्वर यीशु की तरह, who is fully man and fully God. जो पूरी तरह इंसान है और पूरी तरह परमेश्वर है। Amen. आमीन। Let us pray and close. आइए हम प्रार्थना करते हैं। Father, in the name of Jesus, प्रभु यीशु मसीह के नाम से the word that you gave to me, I have shared. जो वचन आज तूने मुझे दिया मैंने वो बता दिया है। Lord, let this word empower me and everybody who hears it. प्रभु होने दे ये वचन हमारी मदद करे, Everyone who hears the sound of this word, और जिन्होंने भी इस वचन की आवाज को आज सुना है, let it go deep into their hearts. प्रभु होने दे ये वचन उनके दिलों में चला जाए। Let them learn to despise the voice of money. प्रभु होने दे आपकी पवित्र आत्मा उन्हें मदद करे कि वो कैसे पैसे की आवाज को मना कर सके, That they would hate to be slaves of money, but love to be slaves of righteousness. कि प्रभु वो घृणा करें पैसे का दास बनने से, लेकिन प्रभु ये लोग तेरी धार्मिकता के दास बने। That they would love you and not money. कि प्रभु वो तुझसे प्रेम करें और पैसे से प्रेम ना करें। And through this, they would cultivate a culture in their hearts. और प्रभु होने दे कि उनके दिलों में प्रभु एक ऐसा कल्चर कल्टिवेट हो जाए Where they can truly be led by you, your voice, your spirit. जहाँ पर प्रभु वो तेरे वचन के, तेरी आवाज के चलने वाले हो Where they जाएं, set you always before them. जहाँ प्रभु वो हमेशा तुझे अपने आंखों के सामने रखें। And through this, that we may be transformed into the image of your Son Jesus. और प्रभु होने दे इन सब बातों से हम तेरी तरह होने पाए प्रभु, Thank you, तेरे Daddy. बेटे की तरह। Thank you, Daddy. धन्यवाद प्रभु, Thank you, Father, that you are willing to slow walk with each one of us. धन्यवाद यीशु कि तू हम सब के साथ धीरे धीरे चलना चाहता है। According to our trust on you. जहाँ पर भी आज हम हैं, हमारे भरोसे, जहाँ पर भी आज हमारा भरोसा है प्रभु, You're willing to journey with us, Daddy. प्रभु तू हमारे साथ चलना चाहता है। I thank you for each beautiful son and daughter of God. प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ हर एक सुंदर बेटे और बेटी के And I लिए। pray that they would experience your voice even this moment. और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि यहीं इसी समय प्रभु वो तेरी आवाज को सुने प्रभु। And that you would continue to speak to them और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उनसे बात करें throughout this day and even as they sleep in the night. पूरे दिन प्रभु, और तब जब वो सोने जाएं तब भी प्रभु आपकी आवाज को वो सुने, So that tomorrow morning when they wake up, और जब वो कल उठें प्रभु, they would experience a new grace. प्रभु वो आपके उस महिमा व ग्रेस को प्रभु, अनुग्रह को पाएं, They would experience a new mercy वो आपकी मर्सी को पाएं, to make different choices. और प्रभु आपकी आवाज को सुनकर प्रभु वो अपने जीवन में जो डिसीजंस हैं उनको कर सकें। That they would be led by your spirit, by your voice. प्रभु होने दे वो आपकी आवाज
चलाए चलें। Amen. In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से आमीन। Church, thank you so much for joining in today. कलीसिया धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। And we love you and we honor you and know that God has great plans for your life. हम आपसे प्रेम करते हैं, हम आपको आदर करते हैं और ये जान लीजिए कि परमेश्वर के बड़े बड़े प्लान्स हैं आपके लिए। And know that in the days that are coming, और जान लीजिए आने वाले दिनों में आप इन बातों को देखेंगे। the just will live by faith. जो जस्ट है वो विश्वास से जिएंगे, धर्मी जन विश्वास से जिएंगे। That money will not be our provider, और जो पैसा है वो आपका प्रोवाइडर नहीं होगा, but God is our provider. पर परमेश्वर आपका प्रोवाइडर है। Amen. I bless you all. मैं आपको आशीषित करता हूँ And I would encourage you to go to our website, www.sonsofglory.net. और मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि आप हमारी वेबसाइट पर जाएं जो है www.sonsofglory.net। And you will find all the information there, how you can connect to us, you can become a part of our connect groups, our e-family, all the things that are happening in the house. और वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कैसे आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, कैसे आप हमारी कलीसिया का हिस्सा बन सकते हैं, कैसे जो अलग अलग ग्रुप है, जो कनेक्ट ग्रुप है, आप उसमें हिस्सा ले सकते हैं। So thank you once again, church. सो मैं फिर से आपको धन्यवाद कहता हूँ। The Lord bless you. प्रभु आपको आशीष We करे। love you and we meet again. मैं आपसे प्रेम करता हूँ और हम फिर मिलेंगे। Bless you. ब्लेस यू।